is your firm only. Yes. Okay. Actually, we wanted to talk to the concerned person for. Okay. So what you basically do here? What? तो हम सब क्या कहते हैं अपना जो स्विचेस होते हैं रेलवे के टर्न आउट होते हैं उसकी हमारे मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिकेशन है मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिक। हाँ जी। ये सारा गवर्नमेंट का अंडर आता है लेकिन अभी सप्लाईज होती है इसकी गवर्नमेंट को होती है हमारा टेंडरिंग सिस्टम है हम टेंडर हमें इशू होते हैं उस हिसाब से वो हम बनाते हैं उसके बाद वो गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर ओनली टू गवर्नमेंट यू डू। हाँ जी ओनली वन कस्टमर नहीं ना 80% to the government orders. Remaining अलग also you do. हाँ जी private. And when you start जी? So 2003. 2003. हाँ जी almost 23 years. Almost 23. हाँ जी. Good. And this one, how long you are associated? So 5 to 6 years. So you know, after COVID you are here. Yes. So you must be knowing. Yes. So actually the purpose of this study is, so we are doing, I'm from IIM Jammu, I'm Professor Jagan, and we are working with the government of Jammu Kashmir. So to identify what are the challenges MSMEs are facing, and they wanted to support MSMEs, JK government. So they asked us to conduct a research report, asking them what are the challenges they are facing and what kind of support system they may be required for them to grow further. So this is the purpose of the study, and we are doing it across J&K region. All 21 districts we are doing, and we have all the industries, not manufacturing service, all types of industries, and we are doing it so far we have conducted 286 forms. It's not only your form. 286 forms are different criteria. We also found a sports company. Like that we have done a lot of all types of sectors. And then finally we will support. So these are the challenges mostly they are facing, and draft policy specifically segregate them industry wise. So that is the place. So nothing to feel no, sometimes we have to give the clarity ना। अभी मैं पहले हमसे बात हुई थी अप्रैल के टाइम पे जब एक वीडियो कॉल ऑनलाइन हाँ so that is first round now this is second round and we have selected few forms and specifically we can, so DICC is also supporting us, so this is the purpose. So where is oh yes ठीक है, तो you know it is recorded, so nothing to say. So you do fabrication here. Yes. And this one, how many workers are here, ji? So almost 35 to 40. 35 to 40. Haan, skilled workers or non-skilled? Both. Haan, and skilled workers are available in this region? Mostly from outside. तो बाकी जो है थोड़ा क्या कहते हैं अपना other states you जैसे यूपी में में so but you have to, so that is a different difficulty to find. No, they are living here only. No, but once they go, then it is a labor is a issue, but not a major issue. Not a major issue. And what about the infrastructure? Ji, like raw materials or सब कुछ मिलेगा? Raw materials from outside only. Outside. But is it available? Yes, sir. Available. Price price थोड़ा है. थोड़ा increasing. Price थोड़ा हमें cost ज़्यादा लगता है. Because for you that iron ore something like that. Iron नहीं, जो हमारी मेन परचेज है वो आती भिलाई से. छत्तीसगढ़ से मतलब ठीक है ना. तो वहाँ से उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 6 रुपए पर केजी है. तो उसके कारण हमें जो हमारी कॉस्टिंग काफी हाई हो रही है. जम्मू कश्मीर दूर है, so and what about electricity वो वाला water electricity का तो बहुत इशू आया था. लास्ट टाइम सच बताऊँ आपको क्या हुआ. हमारा जो लोड था हमारा सैंक्शन लोड था 700 HP का, ठीक है. तो उसके इन्होंने मतलब इनका जो गवर्नमेंट का रेट और टैरिफ ऑर्डर होता है ना, उसमें लिखा हुआ करती थी. सपोज करिए उन्होंने ऑर्डर दिया, हमें टेंडर आ गया, हमने उनको एक बैंक गारंटी दी, हमें रॉ मटेरियल दीजिए, ठीक है. बैंक गारंटी का रॉ मटेरियल आ गया, हम सिर्फ ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट पड़ी, वो पड़ती थी 2 रुपीज केजी, क्योंकि वो आता था मेरठ से, यूपी से मेरठ ना. तो अब उन्होंने क्या किया, सिस्टम चेंज कर दिया. कहते जो आप रॉ मटेरियल लोगे अपनी कॉस्ट से लोगे. आगे बैंक गारंटी के थ्रू होता था, वो हमें रॉ मटेरियल देते थे, हम प्रोडक्ट बना के देते थे उनको. तो जो डिफरेंस था वो हमें क्या कहते हैं बैलेंस को उसका रीइंबर्स कर देते थे. अब उन्होंने पॉलिसी लास्ट में 2-3 सालों में चेंज हुई. उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जो रेलवे की रेल है, रेल हमें खुद प्रोक्योर करनी पड़ेगी. रेल की वो कॉस्ट है और वो कितनी 83 रुपीज केजी है ना. हाँ 83 रुपीज केजी, 83,000 रुपये किलो मीट्रिक टन के हिसाब से वो आती.
6 रुपये फ्रेड आ गया, 90 रुपये बैंक से जो हम इंटरेस्ट लेंगे वो भी डाल दूल के 94-95 पड़ती है पर मीट्रिक 1000 पर मीट्रिक टन। ठीक है, वो हमें आगे ऑलरेडी फ्री आ रही थी क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सप्लाई कर रही थी रेल में। हम जो बना के देते उसके हमें कॉस्टिंग उस सबसे कम पड़ती थी। वो एक कॉस्ट मेजर इशू हुआ। वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो गई, सारी फंड्स ब्लॉक हो गए। सपोज कीजिए हमने 10 सेट बनाने हैं, जो आगे 10 सेट टोटल उसका आता था, मतलब जो उसकी वैल्यू आती थी वो आती थी आपका 9 लाख रुपया टोटल 10 सेट का। वो अब चली गया है 36 लाख रुपया। वो 27 लाख रुपए जो है ना, वो डिफरेंस वर्किंग कैपिटल का फंस गया मेरा। अब जैसे आगे आता था चल गवर्नमेंट यू विल नॉट मेक एनी प्रॉफिट इफ यू लूज दिस। वही तो हम कह रहे हैं, हमारे वर्किंग कैपिटल साइड रुक गई ना। आगे होता कि हमने बैंक गारंटी लगाई, जितनी हमें बैंक गारंटी देते रहे एक्सटेंड करते रहेंगे उतना हमें रेल फटाफट आती रहेगी। ठीक है, अब लेकिन क्या हुआ, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी तो उतनी थी, अगर 100 सेट है, लेकिन 100 सेट के लिए हमें वर्किंग कैपिटल 4 करोड़ की चाहिए। वो वर्किंग कैपिटल का जो फ्लो, उसके क्या है, इंटरेस्ट भी पड़ेगा, फ्रेट भी पड़ेगा, पैसा भी रुकेगा। हाउ डू यू मैनेज नाउ? हमारे से प्रोडक्शन जो होगी, बिल्कुल प्रोडक्शन कम हो गया, प्रोडक्शन सॉरी वर्किंग कैपिटल का जो मूवमेंट होती है वो कम होगी। देखिए ना बैलेंस शीट, ये देखिए बैलेंस शीट 2023। we will see that. ओके चलो ठीक। ओके तो ये जैसे हमारे because we will analyze just for conversation। देखिए ना, अब उससे फंड्स ब्लॉक हो गए। अच्छा, एक तो रीजन ये हो गया। उसके बाद हमने एक पीछे प्लांट लगाया था, मतलब पीछे थोड़ा वो किया था, एक्सटेंशन की थी। तो उसमें हमारी मशीनरी लगी थी 2021-22 में। वो मशीनरी थी 1.25 करोड़ की, 1.25 CR। ठीक है, वो हमने सब कुछ हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आगे उसको वो सब किया, क्योंकि वो वाया गवर्नमेंट उसको इंस्पेक्शन करती है, तो अप्रूव करती है, तब जाके हम सर्टिफिकेट मिलता है कि आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तो DIC से अलग परमिशन लेते हैं, वो अलग आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आती है अलग से अप्रूवल देने के बाद, सब कुछ होगा, अप्रूवल आ गई, टेंडर डालने लगे, चलो जी आइटम कैंसिल किया। हाँ जी, ड्राइंग चेंज, ड्राइंग चेंज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा ये इसकी ड्राइंग चेंज है, उसमें थोड़ा हमें रिस्क आ रहा है, जो हमने ड्राइंग भेजी है उन्हें उस आइटम को कैंसिल कर दिया। जितने वेंडर से अप्रूव थे, आइटम कैंसिल हो गई, हमारी 1.25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट डेड। अरे हाँ जी, अब वो लोन अभी तक चल रहा है हमारा, लेकिन क्योंकि टर्म लोन तो लिया था मशीनरी का ऑलरेडी। यू परचेज लोन, वो परचेज लेने था जो, मतलब लोन यू वुड हैव ऑलरेडी। 1 CR का लोन अभी तक वो चल रहा है, मतलब वो इस साल शायद खत्म हो जाए। ठीक है, वो एक हुआ। अब इन्होंने लास्ट ईयर और इम्प्रूवमेंट किया कि मतलब जो रेलवे से इम्प्रूवमेंट, हाई स्पीड रेल आ रही है ना, आगे थी मतलब 80-90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, वो इन्होंने 130-140 कर दी जैसे स्पीड। उसके कारण जो रेलवे ट्रैक जितने भी ऑल ओवर इंडिया हैं चेंज होंगे। उसके लिए उन्होंने नया एक रेलवे ने अपनी आइटम निकाली, थिक वेब चीज। उससे क्या होता है, रेल आती है, उसकी क्वालिटी अलग होती है, उसकी मशीनिंग अलग होगी, सब कुछ अलग होगा। उसके लिए लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। वो इन्वेस्टमेंट है 3.5 करोड़ की। हाँ, वो अभी इन्वेस्टमेंट की है, उसके कारण हमारा GST फंस गया। 18% आप देख लीजिए 3 करोड़ पे कितना हुआ है। आपका GST इश्यूज है आपके? नहीं डिफॉल्ट नहीं, अब हमारे एक्सेस हो गया। आगे जो एक आधे महीने का होता था कि ड्यू होता था, वो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 80 लाख रुपए GST पड़ा आज की डेट में। वो हमारा कितने हो गए, अक्टूबर में इन्वेस्टमेंट की थी मशीनरी में, जुलाई हो गया, जून आ गया, 9 महीने हो गए, 9 महीने से 80 लाख रुपए हमारा आ गया। अच्छा, वो हम रिफंड भी नहीं ले सकते पूरा, क्योंकि या तो है तो हमारे एक्सपोर्ट के हुए। This is one more say sorry to like this issue is there for see like you there may be other firms also ना। हमारे एक्चुअली सिस्टम ऐसे बन गया रेलवे के कारण, जो पॉलिसीज आई, वर्किंग कैपिटल फंसता ही गया। पहले 1.25 CR की मशीनरी का वो मतलब 4-5 साल हो गए उसको, वो हो गया। फिर अब ये वाला इसका टर्म लोन लिया हुआ है, ये भी है। अब इसका भी ये होएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आके अप्रूव करेगी। अब जैसे हमने अप्रूवल के दिया हुआ है, पीछे आए थे इंस्पेक्टर, अप्रूव करके 1 स्टेप हो गया, अब 2nd स्टेप पे आएंगे, उसके लिए रॉ मटेरियल दोबारा लाना पड़ेगा। मैं क्या पूछा, दिस प्रॉब्लम इज देयर फॉर ऑल द फर्म्स लाइक यू ना, ऑल द इंडस्ट्री लाइक रेलवे इंडस्ट्री, whoever functions wherever, it is the only railway industry in the whole J&K। J&K में सिंगल इंडस्ट्री है this। you are the single। हाँ जी, ओनली J&K। ओके। इसके बाद आपको चंडीगढ़ में मिलेगी या यूपी में मिलेगी। वो जम्मू कश्मीर रीजन, जम्मू कश्मीर ओनली रेलवे। ओके गॉट इट। हाँ जी, उसके अकॉर्डिंग हमें सबसे मुश्किल आ रही है, क्योंकि या तो एक कंपटीशन है कि चलो आता है कि कोई प्राइस का। J&K में सबसे ज्यादा, क्योंकि
बाकी स्टेट से सबसे दूर है। फ्रेट का कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, बाकी अलग कॉस्ट, जो इसकी क्या कहते हैं मैन पावर है, उसकी जो मूवमेंट होती है उसकी कॉस्ट, हर तरह की कॉस्ट आ रही है। अब अच्छा, But your problem is again you are dependent on only government orders. 80% comes from क्योंकि जो अब वो मटेरियल ऐसा है वो जाएगी गवर्नमेंट को, प्राइवेट तो है ही नहीं रेलवे में। या तो रेलवे में, क्योंकि अगर प्राइवेट फर्म कोई आती है उसके पास की इन्वेस्टमेंट के लिए वो आएगी तो गवर्नमेंट के थ्रू ना। तो जो भी आपको एनी सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट सिस्टम चाहिए, क्या क्या चाहिए सपोर्ट में सर? एक तो जैसे आप देखिए ना, जो मशीनरी का लोन था उस पे आगे 30% हमें इंसेंटिव मिलता था, ठीक है, वो भी खत्म हो गया, क्योंकि हम जब जो इन्वेस्टमेंट की उसकी जब पीएमटी होगी तभी वो इन्वेस्टमेंट का 30% आएगा। जब पीएमटी नहीं हुई इन्वेस्टमेंट का 30% ब्लॉक हो गया। अच्छा, अब जो पीएमटी भी नहीं हुई, जो इन्होंने लास्ट में 2021 की पॉलिसी आई थी जो इंडस्ट्रियल की कि आपको इंटरेस्ट मेंशन वाली, वो भी अगर जब तक पीएमटी नहीं होगी 6% वाला ब्याज 4% हमें एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। अब देखिए ना, हमारी कितनी 5.5 करोड़ की लिमिट है, उस पे अब जो पुरानी लिमिट के साथ 3.5 करोड़ पे 4% लगाएगी साल का, कितना हो गया 35 का 1500 लाख हो गया। नए टर्म लोन पे जो इंसेंटिव था वो भी 4% गया, उसकी मतलब उसका भी 4000 पर मंथ के जा रहा है, ठीक है। उस पर जो 30% इन्वेस्टमेंट आनी थी उससे हमारा टर्म लोन भी कम होना था। आज की जो हमने टर्म लोन लिया था 1,75,00,000 का, और आज की डेट में 65 लाख का रह गया 4 साल के अंदर अंदर। अब देखिए वो हमने 170 कहाँ से दिया, वो भी फर्म्स के थ्रू दिया ना। वो सारे इन्वेस्टमेंट ब्लॉक होती जा रही है। बट सिंस यू आर ओनली वन फर्म, आई थिंक दिस इज नॉट मोस्टली नोन प्रॉब्लम आल्सो। आई थिंक नोन प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि अब जो इसमें आ रही है इन्वेस्टमेंट आ रही है वो आ रही है प्राइवेट के थ्रू, प्राइवेट वेंचर से टाई अप हो रहा है। तो लेकिन जेएनके में कोई टाई अप नहीं करना चाहता क्योंकि उनको दूर पड़ता है। ये चक्कर है। क्योंकि देखिए ना, अब जो छत्तीसगढ़ में प्लांट होएगा, कलकत्ता होएगा, यूपी होएगा, प्राइवेट पार्टनरशिप प्राइवेट है, इन्वेस्टमेंट भी क्योंकि उनको रॉ मटेरियल आराम से मिल जाता है आसपास से, क्योंकि मिल सारी वहाँ पे हैं, सेल की, जिंदल की, छत्तीसगढ़ हो गया, भिलाई हो गया, कलकत्ता से सर, क्योंकि जो रॉ मटेरियल मेन यहीं से आएगा। इंस्पेक्शन के लिए आप कहीं दिल्ली से आते हैं, वो भी उनको पास पड़ता है यूपी को, वो जो टाइम है ना, टाइम का वो उनको इजी रहता है। टाइम भी अच्छा। अब पेमेंट है, सपोज कीजिए आज हमने माल मंगा लिया, ठीक है, माल को आते हैं हमारे पास 7 से 8 दिन लगेंगे, प्रोसेसिंग होते 20 दिन लग गए, इंस्पेक्शन होगी 5-7 दिन उसमें लग गए, माल जाएगा, वो चेकिंग करेगी, पेमेंट बिल जाएगा, ऑलमोस्ट आप लगाए 2 मंथ का साइकिल आएगा। Okay. Gets late, huh? But one thing is you will get it for sure. You see that you will get it, but payment will come, but it will get late. पर उसमें भी चक्कर है, अगर हमने सप्लाई लेट की 10% एलडी है। अगर जैसे मंथली करेंगे 2% है, मैक्सिमम 10% है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम पहुंच जाते हैं। क्योंकि जैसे 3 महीने का भी पीरियड हो गया, 6% कट गया था, वो 50 लाख पे 6% मार्जिन तो गया, मार्जिन वो ब्लॉक हो रहा है, फंड लगे जा रहे हैं, बैंक से कितना ही ले लेंगे सर। राइट। अच्छा, इंसेंटिव मिलता है, चलो। ईयरली टर्नओवर कितना है रफली? टर्नओवर अब अलग-अलग ईयर में डिपेंड है, तो थोड़ा हमने बीच में एक्सपोर्ट का शुरू किया था, ये मार्जिन को थोड़ा लाने के लिए। रफली हाँ जी सर, रफली 10 to 15 करोड़ है। 10 to 15, हाँ जी। दैट इज स्टैग्नेंट। अब स्टैग्नेंट नहीं है। अब जैसे आपको बताया, जैसे जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट, जैसे बैंक गारंटी के, मैं क्या पूछा था, क्यों पूछा था, लाइक लास्ट 3 years और 5 years ये ग्रोथ हो गया और स्टैग्नेंट हो गया। 2022-23 में हमारा प्लांट बंद था, 6 से 7 महीने का। क्योंकि एक तो रॉ मटेरियल नहीं मिला, थोड़ा मतलब क्या कहते हैं उसके कारण, थोड़ा बीच में कोरोना के कारण सप्लाई रुकी, उसके कारण 6 महीने प्लांट बंद। उस साल में टर्नओवर कम थी। उसके बाद जो टर्नओवर बढ़ी है वो इसलिए बढ़ी है क्योंकि जो रेलवे की कंडीशन चेंज होगी परचेजिंग और सेल की, उसके कारण जो आगे आइटम 2 लाख की थी वो होगी सिर्फ 6 लाख की। तो उसके कारण जो फ्लक्चुएट हुआ है वो आपको लगेगा टर्नओवर काफी बढ़ गई है, वो नहीं हुआ। Okay. So it looks like it has grown up. But you tell from your experience, your observation, is your company growing or is it stagnant? Stagnant in the terms of government. Next 5 years, how do you see it? It will grow or it will? In the next 5 years we are growing. You're growing. You see good future. Yes. क्योंकि हम सिर्फ रेल पे भी डिपेंड नहीं कर सकते, हमें प्राइवेट के साथ जाना पड़ेगा। ओके। कोई और प्रोडक्ट जैसे फैब्रिकेशन रिलेटेड और प्रोडक्ट जैसे लाना पड़ेगा,
कोई मतलब इन्वेस्टमेंट टाई अप करना पड़ेगा किसी और सेक्टर में, जैसे इसी रिलेटेड है किसी और सेक्टर में किसी और So you are expanding. Yes, sir. So to do that, you get all the support systems. You Yes, have sir. all the support systems. हाँ जी, private. Anything specifically that you want from like not specifically From government? Yes sir. सर एक तो जैसे अब जो पॉलिसीज आई थी पीछे 2021 से 2030 वाली, उसमें इन्होंने दिया था कि 2% आपको टर्नओवर का बेनिफिट मिलेगा, जो 2% टर्नओवर का आपको रिफंड मिलेगा। रिफंड तो बनता है, आपको पता है 10 करोड़ की टर्नओवर है, 2% बनता है 20 लाख रुपया, इशू होता है 2 लाख रुपया, क्योंकि वो फंड्स उतने इशू होते हैं कि सभी को बंट जाए। 20 लाख के पीछे 2 लाख से कुछ भी नहीं मिलता। अब देखिए ना, हमारा जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो आप लिखा 5.5 की में 50 लाख साल का इंटरेस्ट जाता है, 50 लाख में से 2 लाख कट भी जाए क्या काम महसूस होता है। अब वही 50 लाख पीछे 20 लाख की एक रकम आए बैलेंस शीट में, कहीं पता लगे 20 लाख आया है, पता लगता है कि भाई खर्चे जो है, अदर कॉस्ट है, जो भी इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कम हो रही है। जो हमारे टर्म लोन्स हैं उसके जो कॉस्ट है, देखिए 6 लाख रुपए किस्त जा रही है पर मंथ, वो तो कम होती, वो 3 लाख की रहती, हमें पता लगता है कि यह 3 लाख रुपए पर मंथ बच रहा, हमारा साल का हमारा 35 लाख बच रहा है, 35 वो बच गया, 20 वो बच गया, कम से कम हमारा जो प्रॉफिट किताबों में आए, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उसको ग्रो हो, हमारा वर्किंग कैपिटल फ्लो होता रहे, कैश फ्लो चलता रहे हमारा वो, लेकिन वो खड़ा हो गया। खर्चे तो रुकेंगे नहीं, खर्चे तो बढ़ रहे हैं, साथ में इनकम क्रेडिट साइड नहीं आ रहा ना हमारा। उसके लिए टर्नओवर इंसेंटिव लाई थी गवर्नमेंट, चलो बहुत बढ़िया था। जैसे 2013 से 17 में आया, 17 से 23 में आया, 21 में 5 साल का इन्होंने, उसके 21 में नई पॉलिसी आ गई, उसमें इन्होंने 2% कहा कि मिलेगा, सबने अप्लाई किया, सभी यूनिट से अप्लाई किया, मिला, चलो सैंक्शन भी हो गया। अभी लास्ट वीक सैंक्शन ऑर्डर आया हमें सभी फर्म का, जैसे ऑनलाइन मेल आई है कि आपको सैंक्शन हुआ, उसमें हमारी अमाउंट आ रही है 26 लाख रुपए। जब इशू होएगा दिसंबर में, वो होएगा, जब हमारा क्रेडिट होएगा वो होएगा 10%, 26 लाख का 2.5 लाख रुपए, वो 22.5 लाख वो भी रुक गया। अच्छा, हमें तो वो फंडिंग हमारी जो कैपिटल वर्क फ्लो कैश फ्लो है वो रुक रहा है। It should be properly regulated. I mean, flow अगर सपोज करो आप इंडस्ट्री, आपने रूल्स बनाए हैं कि आपने जैसे Q1 का अप्लाई करना है, जुलाई तक अप्लाई करना है, लोग जीएसटी भरते हैं, कोई इंटरेस्ट उठा के जीएसटी भरता है, आपने 20 तारीख को जीएसटी भर दी, 31 को हमने रिफंड अप्लाई कर दिया, चलो अब 30/9 तक 30/10 तक दे दें, आप कह रहे हैं 31/7 का रिफंड आपको अगले साल की 31/12 तक मिलेगा, 1.5 साल बाद। हमारा तो पैसा गया। अच्छा, अप्लाई होएगा, वो जब ऑडिट होएगा, ऑडिट कब होएगा? 1 साल के बाद। Got it. Like, no, it should be properly regulated and there should be proper timeline. Yes, proper timeline. कि अगर आपको, अगर कोई उसमें इरेगुलरिटी है, कोई फर्म की तरफ से है तो उसने डॉक्यूमेंट पूरे नहीं दिए, वो फर्म का दिक्कत है कि फर्म के पास नहीं कागज। अगर फर्म ने आपको सारे कागज सबमिट कर दिए, ओके भी हो गया, अप्रूव भी हो गया, लोकल भी अप्रूव हो गया, हायर लेवल चला गया, जब फंड आते हैं वो कट के आ जाते हैं। अच्छा, टाइमलाइन भी इतनी बढ़ जाती है, 1.5 साल 2 साल, कई लोग पार्टीज भूल जाती है, हमारा पैसा लेने वाला भी था, कहाँ 20 लाख सोच रहे हैं, कहाँ 2 लाख आ रहा है, वही ना। वो इसीलिए टाइमलाइन नहीं है कोई, आगे टाइमलाइन होती थी, आगे जो गवर्नमेंट की स्कीम आती थी 2017 से 2021 वाली जो स्कीम थी 22-23 वाली, उसमें क्या था, आपको 29% आपको वो मिलेगा आईजीएसटी का रिफंड। हमने जैसे जून की हमने रिटर्न भरी, 31/7 तक अप्लाई कर दिया, 1-2 महीने प्रोसेसिंग सैंक्शन वो लगाते हैं, वो सैंक्शन कर देते हैं, उसी टाइम मतलब 1-2 महीने का सैंक्शन हो जाता है। आता वो चंडीगढ़ से है रिफंड, क्योंकि सारे मेन हेड ऑफिस आते थे इनके, वो आए थे 1-2 महीने में आ जाते, चलो तसल्ली हुई थी कि 6 लाख आ गया हमें। वो साल में 18-19 लाख, वो जो 2% के हिसाब से बनता था, वो उस टाइम 29% बनता था। कहने का मतलब जो उस टाइम पे जीएसटी हम भरते थे वो वापस आए थे, हमें रीइंबर्स होती थी एक तरह की, लोकल भी और दूसरी भी। अब लेकिन रीइंबर्स नहीं हो रही, फंड रुक रहे। ये 2022-23 से है, 3 साल हो गए हैं। अगर 3 साल का हम देखें, हमारी एनुअल जो जीएसटी कैश जाती थी, तो कैश पे रिफंड मिलता था 60 लाख जाती थी पर ईयर, 60 लाख में 30% लगा लिए, ऐसे 18 लाख रुपया वो हमारा हमें रिफंड होता था। आता भी था, ये नहीं कि आया नहीं, आया सारा आया, टाइम भी आया, मैक्सिमम 1-आधे महीने का गैप रहा, लेकिन आते थे वो। अब लेकिन वो 3 साल से वो भी नहीं आ रहे, क्योंकि वो पॉलिसी चेंज होगी। वो कहते हैं कि आप 2% टर्नओवर में जाओ, 2% में जाते हैं, वही 18-20 लाख बनता है, इतना ही बनता है, लेकिन वो आते हैं 2 लाख है, 15 लाख का गैप आ गया ना। आगे all the cost, yeah. The delay cost these people don't take into consideration. Yes. Yeah.
You have to ask anything. आपका कितना इम्प्लीमेंटेशन कितने परसेंट हो रहा है प्रोडक्शन का? सर आप लगा लीजिए इसको, आगे तो होता था ये 60-70% जाता था जब मतलब हम रेल रिप्लेनिशमेंट पे लेते थे। अब जब से रेल हम खुद लेने प्रोक्योर कर रहे हैं वो रह गए 20% या 30%। अभी कंपनी को स्टार्ट हुई से 2003 में। ओके हाँ Nice thing. Yeah, you can balance it. ये 2 साल की 3 साल की सर्विस चेक कर लीजिए, ठीक है। तो सर सजेशन जैसे आपको गवर्नमेंट को देंगे, सबमिट करेंगे। Oh, this is a little, yeah, because see, we put all the suggestions together. Definitely this issue we will highlight. क्योंकि ये मेन इशू है, देखिए ना, वर्किंग कैपिटल है, टर्म लोन का, इसका वर्किंग कैपिटल का हो गया, टर्म लोन का हो गया, 29% का सब्सिडी हो गया, 2% इन्वेस्टमेंट वो हो गया, उसको हम मिलाइए ना, टोटल इंडस्ट्री को खर्चा इतना ही आता है। जो उनको So this comes everything under state government or the central government? जो नई पॉलिसी आई है वो आई है सेंटर के थ्रू, लेकिन फंड सारे सेंटर से आएंगे, स्टेट से डाइवर्ट होंगे। हाँ। अब जब सेंटर फंड रिलीज करेगा तभी स्टेट देगा, स्टेट के पास ही नहीं आएंगे। Here actually, see, honestly speaking, they wanted to do like no as fast as possible. हाँ जी हाँ जी, But government mechanism has its own हाँ time. वो तो हाँ टाइम लेते हैं। But we can suggest like no, when you are saying I just thought of this one thing. We can suggest saying that the fixed time, like no, this is the time. At least the firms will be prepared for that. Yes. This is the one, and they can inform the bank or they can plan Yes. accordingly. Yes. So once you tell them without notification or if you delay without this thing, they suffer. All this. जैसे इन्होंने पॉलिसी लगाई 2021 से 2030, मतलब इस 10 साल के अंदर जो भी सब्सटेंशियल एक्सपेंशन होएगी, जो भी नया प्रोजेक्ट आएगा उस पर सब्सिडी आएगी। आपने जैसे लोकल विजिट किए होंगे कई जगह, उनको नहीं आ रहे फंड, कईयों के रुके हैं। आगे जो 1-1.5 साल आए हैं, नॉर्मल आए हैं, उसके बाद फंड आने बंद हो गए। वर्किंग कैपिटल का वो बंद हो गया, इंटरेस्ट सबवेंशन वाला 2% वाला बंद हो गया, 29% वाला। अब देखिए ना, अब रफली अब लगाएं, अगर हम ये हमारी पीएमटी होती है 3 करोड़ की, इसकी पीएमटी 1 करोड़ के ऊपर जो उसके एक्स्ट्रा एक्सेसरीज आई हैं, वो 1 करोड़ जो पिछला उसका प्लान था उसका कम से कम 5 करोड़ के बाद 30% लगाइए, कितना बनता है? 1.5 करोड़ रुपया। जो हमारा बैंकों को हमें दे दिया वही था, देखो 1.5 करोड़ वो दिया, उसके बाद जो इंटरेस्ट दिया हमने, कम से कम हम देखें ना 4-5 साल में हमने 50 लाख रुपए सिर्फ टर्म लोन के ऊपर इंटरेस्ट दे दिया है। उस पर अब 4% के हिसाब से अगर वो 10% बनता है, 4% के हिसाब से वो 20 लाख वो बनता है। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स मिलेगा ना, लोन्स फॉर यू। लोन्स देखो, बैंक से हम जब लोन लेंगे, ठीक है, वो हमें 10% लगा देगा, 9% लगा देगा। गवर्नमेंट ने हमें स्कीम दी कि आपको 6% में कैप है, 6% तक आपको देना पड़ेगा, जो उसके ऊपर का वो गवर्नमेंट आपको रिफंड कर देगी। उसकी टाइमलाइन होती थी कि हर क्वार्टर के बाद आप सबमिट कीजिए डॉक्यूमेंट, वो आपको बैंक में क्रेडिट होते थे। 2-3 साल हुए, हमें तो एलिजिबल ही नहीं हुए हम, क्योंकि उन्होंने टाइमलाइन दी थी कि 31/3/24 तक, नहीं 30/9/24 तक थी शायद जो पॉलिसी के अंडर। उसमें जब तक हमारी पीएमटी नहीं होगी हम सबमिट कैसे करेंगे? क्योंकि वो जो हमारा प्रोजेक्ट पीछे बंद हो गया, आपको बताया 2022 वाला, वो उसके हम पीएमटी क्या ही कराते, प्रोजेक्ट ही बंद हो गया। बिना प्रोजेक्शन के डीआईसी को हम फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। और जो नई मशीनरी आई है इसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पुराने नहीं था। वो हम वहां से भी गए, यहाँ से भी गए, वो फंड भी रुक गए। अच्छा, वो टर्म लोन था, वो आज की डेट में 5-6 लाख रह गया उस टाइम वाला, जो ये था 65 लाख रह गया। चलो जैसे भी मतलब हमारे बड़ों ने दिया, कहीं से भी पैसे इधर से पकड़े उधर से पकड़े, लेकिन देखिए ना गुडविल तो उस हिसाब से कम होती नहीं पा रहा कि इतना लोन ले लिया, इतना कर लिया। बैंक वाले ऑब्जेक्शन करते हैं कि आप इतना लोन क्यों ले रही हो। बैंक वालों को क्या समझाएं? देखो ना, बैंक वाले तो उनको मेन चाहिए कि जो पार्टी है उसका क्रेडिट सर्कल ठीक रहे। अब लेकिन आपको पता है इतना फंडिंग हो रही है, क्रेडिट कहीं ना कहीं तो ब्लॉक होएगा ना। अब जैसे हम आपको बिजली का बताया, बिजली वालों से अगर हम 4 साल का हिसाब मांगे ना, हमारा 12 लाख रुपया लेने वाला बनता है सिर्फ 4 साल का। ये पिछले का तो हमने रिकॉर्ड निकाला नहीं, पिछले का रिकॉर्ड मैंने लगा था, बिजली वाले ने कहना था आप हमें देते थे।
ये सिर्फ 4 साल का हमने लेटर निकाली है। मेरे जो बड़े भाई हैं वो देने के लेटर राघव AEE को किसको AEE को हम लेटर देने गए, उसने लेटर लेने से मना कर दिया, कहते मैंने लेटर नहीं लेनी, अगर मैंने लेटर ले ली मेरी नौकरी चली गई, मेरे पे मतलब आएगी कि आपने बिल क्यों नहीं ठीक काटे, उसने लेटर लेने से मना कर दिया। अब बताए मतलब पार्टी जाए कहाँ पे? देखे ना 3 लाख रुपये साल का छोटी अमाउंट तो नहीं है, 25,000 पर मंथ। अच्छा वो तो चलो लगाए ऊपर से इंटरेस्ट भी लगाते हैं 1.5% लेट चार्जेस का, कि जो बिल लाख रुपये की 1.5% 1500 जाता है हर मतलब उसका नहीं 1500 क्यों ये जा रहा है ना, टोटल बैलेंस पे जाता है जो भी आपका ड्यू होता है। 10 लाख ड्यू है, 10 लाख पे 15,000 रुपये पर मंथ ये खर्चा, 25,000 बोल 40,000 रुपये इन्होंने एक्स्ट्रा लिया हमसे, लगा लिया कितने साल कर लिया। अच्छा कई पार्टीज को नहीं पता, हमने इन्फॉर्म भी किया जो हमारे लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कईयों को जिनको नॉलेज थी उन्होंने तो कम करा लिया, जिनको नहीं नॉलेज थी उनको वैसे आ रहा कोई अवेयर। अच्छा JK PDT वाले क्या करते हैं, अगर तो बिजली का बिल लेना है पैसे लेने आपसे आपके पास आ जाएंगे, अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है चलो जी हमें पता ही नहीं मिलेंगे नहीं कभी को, ऑफिस जाएंगे ऑफिस में बैठे नहीं होंगे। आपने लास्ट वीक ये आपको न्यूज में आई है कितनी खबर आई है लोकल PGD JK की, कितना हंगामा हुआ, वो सर वो लोकल है उनको पता है। अब कितनी न्यूज आई है, हम हमारा दूसरी रोड का कराने गए थे बैठे नहीं कुछ, हम उनसे देखो हमने उनसे कहा कि सर हमें डुप्लीकेट बिल दे दो, कहते लेटर लिख के दो, चलो हमने लेटर भी लिख दी, कहते इसको मार्किंग कराओ, मार्किंग किसे करानी या तो AE से करानी है या JE से करानी, JE ऑफिस में नहीं। अच्छा चलो हमने कहा सर रिक्वेस्ट करो कि हमें डॉक्यूमेंट को दे दो हम टैली कर लें कुछ कर लें, तो कहते नहीं लेटर लो। अच्छा चलो बाई चांस नहीं देंगे, बाई चांस चलो हमारी फाइल में रिकॉर्ड था, हमने सारा रिकॉर्ड बनाया, इन्होंने क्या किया 2022-23 में बिल 0 कर दिया, तुम्हें सारा पेड हो गया, 2 साल चला बिल, हमने 15-20 हज़ार भर दिया, एक लोकल कनेक्शन लिया हुआ ना हमने, ठीक है वो भरा, उसके बाद भी 0 हो गया एक बार और, उसके बाद इन्होंने लास्ट ईयर 30/9 को इन्होंने एक और बिल निकाल दिया 43,000 का, कहते हैं आप बिल भरो आपको एमनेस्टी मिल जाएगी, हमने 15,000 वो भी भर दिया, इन्होंने 28,000 की एमनेस्टी दे दी, हमने कहा चलो ठीक है बर्डन हमारा कम हुआ। इन्होंने फिर 31 मार्च को बिल निकाला, उसमें हमारा 21,000 पेंडिंग था, हमने 21,000 चलो हमने कहा एमनेस्टी का बेनिफिट उठाना है, हमने 21,000 भी भर दिया, बिल 0 हो गया, अप्रैल का बिल आया 900 रुपया, ठीक है वो हमने अभी चलो का 1 महीने का 900 क्या ही आएगा, मई का बिल आया 28,000 फिर ऐड हो गया। वो कहते जी आपको पुराना चल रहा है एरियर है ये है वो है, अब हमने कहा हम जमा नहीं करना, ये प्रॉब्लम तो रेजिडेंशियल में भी ये प्रॉब्लम है, रेजिडेंशियल में कमर्शियल दोनों में ये प्रॉब्लम है। देखो एमनेस्टी में आपने पार्टी को दे दिया कि आपने एमनेस्टी जमा करानी है, बेनिफिट तो किताबों अच्छा उन्होंने क्या किया आपके 2 खाते अकाउंट बना दिए, एक आपका मेन अकाउंट बिल का, एक आपका एमनेस्टी का अकाउंट, आपका यहाँ से लेस कर दिया कि हमने आपको एमनेस्टी दी उसमें ऐड कर दिया, वहां से भी लेस करो, एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में फिर वापस उस जेब में ऐड करवा दिया पार्टी। अच्छा जो चलो जिनको अवेयर थे वो तो चल गए लड़ने, अब जो जिनको अवेयरनेस नहीं है जो नहीं इतने पढ़े लिखे उनको दिक्कत आई ना, वो क्या करें क्या नहीं करेंगे। प्रॉब्लम इसमें ये है कि नहीं पे करोगे तो उसमें इंटरेस्ट भी लगेगा, इंटरेस्ट छोड़ो उनका क्या करना, तार काट दो कनेक्शन काट दो, इंटरेस्ट तो पड़ेगा 1.5% पड़ता है, ग्रॉस भी पड़ेगा, वो एक दिन भी ड्यू हो उसने टोटल पे निकाल के, अच्छा वो आपको 2-4 महीने कैलकुलेशन नहीं भेजेंगे, अरे फिर 4 महीने की इकट्ठी भेज देंगे। वो अब देखो उनकी भी कोई गलती नहीं, वो अपनी जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनको समझनी चाहिए ना प्रॉब्लम तो है। वो अब सर्कल ही ऐसा बने क्या कुछ कर नहीं सकता, सब मजबूर है, फिर ये कि जैसा चल रहा है चल रहा है। ये पॉइंट आपने अच्छा बोला। अब बस यही मेन है कि अब जैसे अब आप सर्वे कर रहे हैं, अब पीछे अब आपको पता होगा NITC भी आए थे, NIT नहीं सॉरी नीति आयोग से, हाँ नीति आयोग से आए थे, ये मार्च की बात है, तो एक आए वो सर्वे कर रहे थे, हम मेल भेजे DIC जम्मू के थ्रू आई थी मेल कि वो नीति आयोग वाले आए हुए हैं, उनको भी सर्वे चल रहा है, उनको हमने ये प्रॉब्लम बताई, ऑल इंडिया लेवल सर्वे, हाँ ऑल इंडिया लेवल,
तो वो भी उस टाइम आए थे, उनको ये सेम हमने पॉइंट बताए। तो हमने कहा कि इस पर पॉलिसी आएगी। See, the thing is, that's what, like, say, when we said, I'll tell you for your information. So we gather all the information, like you, so many people have. वो मैं समझ गया कि आपने सर्वे किया, सर्वे में आपने पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट निकाली अपनी कि ऐसे इस इंडस्ट्री को, अगर कॉटन है, कोई भी बैट है, कोई स्पोर्ट्स है, कुछ भी, उसको ये प्रॉब्लम सारी है, कॉमन प्रॉब्लम से निकाल ली, कॉमन को आपने आगे प्रेजेंट कर दिया गवर्नमेंट को कि आपको ये कॉमन है। No, government also, they cannot solve all the problems immediately. So common problem first, like, no, what is important problem है, they will definitely try to address the thing, and one by one they will try to. वो सभी को नहीं सॉल्व करे, उनके चलो हम मानते, क्योंकि हम भी मानते हैं गवर्नमेंट सब नहीं सॉल्व कर सकती, वो सभी की अगर कॉमन है एक, कॉमन को वो सॉल्व कर देगी। राइट। अच्छा, वो कॉमन सॉल्व होती है, इंडस्ट्री को बहुत बेनिफिट है। राइट। पर लेकिन कॉमन है कि ढूंढने में टाइम लग रहा है ना। No, but my point was, like, no, whether it comes under the jurisdiction of the central government or to the state government. सर ये आता है इंडस्ट्री वाले को नहीं पता चला वो किसकी जुरिडिक्शन में। No, but most of the things that you are saying ना, it comes under the. अब देखिए, अब मैं बताता हूँ, अब GST है जो मतलब इसका इंसेंटिव होता था, जो 100% वाला होता था इंसेंटिव, वो जाता था स्टेट गवर्नमेंट के पास। जो 29% वाला जाता था वो सांबा डिवीजन वाया एक्साइज के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट का आता था। सेंट्रल ले कहते स्टेट देंगे, स्टेट ले कहते सेंटर देंगे, इस तरह है। अच्छा, इंडस्ट्री वाला मजबूर है, क्या करेगा, कहता है जब आएगा तब आएगा, हम अपनी तरफ से अप्लाई कर देते हैं, हम तो काम कर ही रहे हैं अपना जो कर रहे हैं। देखो, वो इंडस्ट्री वालों को प्रॉब्लम पता है, गवर्नमेंट को भी पता है कि प्रॉब्लम आ रही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व पूरी नहीं हो सकती, थोड़ी बहुत रहती है, पर वो ज्यादा रह रही है, वो दिक्कत है। देखिए ना, कॉमन का आपने ये करना है ना, अपने सब सर्वे करके कॉमन पॉइंट्स निकाले इंडस्ट्री के, कॉमन को अपने क्लब करके गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर देना कि ऑल ओवर J&K में ये प्रॉब्लम आ रही है। कॉमन में से आपने कोई भी जो गवर्नमेंट का थिंकिंग होगी उस हिसाब से उसकी पॉलिसी निकाल लेंगे। लेकिन अब 2026 है, 2021 में पॉलिसी आई थी, 6 साल लैप्स हो गए हैं, 4 साल के फंड ही नहीं है, कहाँ से देंगे? देखिए ना, आपने सर्वे वैसे किया होगा, सभी इंडस्ट्री आपको बताएगा फंड नहीं आ रहे। अब बताइए, नहीं आ रहे। 1-2 साल आए हैं। I completely understand your. नहीं, 1-2 साल आए हैं, सभी इंडस्ट्री लिखेंगे जो जिन्होंने नया सर्टिफिकेट, सामने ये इंडस्ट्री है, ये फोम बनाती है, उसके गद्दे बनाती है, इसने अभी इंडस्ट्री इसको मतलब 1.5-2 साल हुआ है सेटअप किया, इसको 1 साल आया अगर फंड, उसको लगाया नहीं आया। हमारे जुनून में है, उन्होंने इंडस्ट्री सेटअप। Do you have a owners association here? Firms. हाँ जी, एसोसिएशन वो बनी हुई है, आप वो कह रहे हैं all the units. हाँ जी, यूनिट्स की एक एसोसिएशन बनी हुई है, उसका मतलब जैसे वो चेयरमैन बनाएगा। एक्टिव है, पर क्या करेंगे? but what they can at least like as a team you can push. बैठ के 4 बंदे बात करेंगे और क्या ही करेंगे, या तो वो कुछ करें। ठीक है, we will do our that's what we can say. आपका नाम जी? आदित्य अग्रवाल। आदित्य अग्रवाल। आपका डॉक्टर जगन।